Assalamu alaikum everyone. I welcome you all wholeheartedly to the platform of English Movie.5. Let's get started with another lesson of importance. Yes, it is the concept of changing the voice of sentences, right? You know already I have imparted you an introductory lesson on this concept. Especially I need all the students' attention who are faced with this concept in one or the other sorts of exams. This is going to help them a lot. So let's get started with the very first lesson of this series. It belongs to the present tense, simple present we can say, or present indefinite tense. Today I'm gonna tell you about how to change the voice of present indefinite sentences. Let's get started. First of all, you must recall to your mind, students, that what is the basic structure of simple present or present indefinite tense. See in front of you, I'll be giving you directly the examples of affirmative sentences because this is something you can say a very common and basic tense which have been taught to students over the years at the very basic levels, you can say, right? See the first example, it is you play the match. Next one is he goes to the market. Ram plucks the mango. You sing a song. Jack learns French, right? सो इसमें आपने नोटिस क्या किया कि सबसे पहले हमारे पास सब्जेक्ट मौजूद होता है, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है जो कि वेरी कर जाती है सिंगुलर नाउन्स के साथ. एस और ई एस हम ऐड करते हैं, बाकियों के साथ एस और ई एस को स्किप करते हैं. और लास्टली वी ऐड ऑब्जेक्ट, राइट? सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. दिस इज व्हाट इज द basic structure, you can say positive structure of present indefinite tense. What is different in the negative structure? You can see in front of you, do not and does not is included, like you don't play the match. And what happens in the interrogative structure? We add do or does before the sentence and the rest of the sentence remains the same. It is do you play the match, right? I hope कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर अब आपके सामने वाज़ेह हो चुका है एंड इट इज़ रिकॉल्ड टू योर माइंड. नाउ लेट्स बिगिन विद द चेंजिंग ऑफ वॉइस. इसकी वॉइस चेंज कैसे करनी है व्यूअर्स? सबसे पहले आप याद रखें कि जो हमारे पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है इसको आपने थर्ड में लेके जाना है. जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्टरी लेसन में बताया था कि हमेशा तमाम पैसिव सेंटेंसेस जो हैं वो थर्ड फॉर्म को फॉलो करेंगे. हमने जस्ट ध्यान रखना है हेल्पिंग वर्ब्स का कि वो हम कौन से यूज़ करेंगे. सो चूँकि व्यूअर्स सिंपल प्रेजेंट टेंस का अपना एज सच कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता, इसको नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाने के लिए डू और डज का ऑक्सिलरी वर्ब हम यूज़ करते हैं, लेकिन इट डजंट हेल्प अस टू मेक इट इनटू पैसिव. सो इसलिए इसमें हमें इज़, एम और आर की ज़रूरत पड़ेगी, राइट? So remember that while changing the active voice into passive in simple present tense, we need is, am, are. Okay? Second thing is this, that we need to change the places of subject with the object. The way you can see in front of you. Girl clicks selfie. Girl क्या है? It is subject. Clicks is the verb. Selfie is the object. Selfie और girl दोनों आपस में अपनी place change करेंगे. दरमियान में हम वर्ब इज़, एम, आर में से जो हमारे लिए सूटेबल है अकॉर्डिंग टू आवर सब्जेक्ट वो लिखेंगे हम, और एंड में हमारा ऑब्जेक्ट चला जाएगा जो कि सब्जेक्ट था प्रीवियस सेंटेंस में, राइट? लेट्स डू इट. गर्ल क्लिक्स सेल्फी. सेल्फी इज़ क्लिक्ड बाय गर्ल. ये हमने इसकी वॉइस चेंज करके इसको पैसिव में लिखा, राइट? इसी तरह से देखिए, अगर गर्ल की बजाय हम इस सेंटेंस को एज अ प्लूरल लिखें, गर्ल्स क्लिक सेल्फी, यहाँ पे गलती से एस ऐड हुआ हुआ है व्यूअर्स. गर्ल्स के साथ क्लिक सेल्फी होना था, राइट? तो इसका अगेन वॉइस जब चेंज होगी तो सेल्फी इज़ क्लिक बाय गर्ल्स ही रहेगा, सिर्फ प्लूरल हो जाएगा, राइट? और अगर इस तरह से हो गर्ल्स क्लिक सेल्फीज़ तो फिर सेल्फीज़ आर क्लिक बाय गर्ल्स, राइट? आई होप यू आर गेटिंग. सो जस्ट रिमेंबर, we are bound to use is, am, are helping verbs plus third form of the verb. The other is that we have to change the place of subject and object accordingly. Now let's do another sentence. He plays football. What is subject here? He. What is object? Football.
What is the verb? It is plays. We will change the place of subject with the object. Is MR will be used, and third form like football is played by him. आई होप कि आपको अभी तक जहन में हैं आपके तमाम ऑब्जेक्टिव केसेस. ही इज़ द सब्जेक्ट केस ऑफ प्रोनाउन एंड हिम इज़ हिज ऑब्जेक्टिव केस. राइट. इसका नेगेटिव कुछ इस तरह से होगा, ही डजंट प्ले फुटबॉल, फुटबॉल इज़ नॉट प्लेड बाय हिम. राइट. और इसी तरह से आप इंट्रोगेटिव में करेंगे व्यूअर्स के डज ही प्ले फुटबॉल, इज़ फुटबॉल प्लेड बाय हिम. See another example, he opens the door is opened by him. इस तरह से आपने इन सेंटेंसेस को लेके चलना है. थर्ड फॉर्म याद रखनी है, इज एम आर, और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की प्लेसेस इंटरचेंज हो जाएंगी. याद रखें कि जो एक्टिव सेंटेंसेस हैं इसमें हम मेनली किसकी बात करते हैं? सब्जेक्ट की, जो कि एक्शन में होता है. और पैसिव सेंटेंसेस जो हैं मेनली वो किसके बारे में बात करते हैं? ओवरऑल एक्शन के बारे में. ये बात भी आपने भूलनी नहीं. व्यूअर्स, एक और चीज़, इन तमाम केसेस को आपने मेमोराइज कर लेना है अच्छी तरह. सब्जेक्टिव केसेस जो हैं वो यूज़ होते हैं एक्टिव सेंटेंसेस में, जबकि पैसिव सेंटेंसेस में हम ऑब्जेक्टिव केस यूज़ करते हैं. और आपके सामने इनको आपने अच्छी तरह से मेमोराइज कर लेना है. नाउ इट्स द टाइम फॉर एक्टिविटी. दिस टेंस वॉज सो ईजी टू मेमोराइज. Just thing is this that you have to practice over this tense. अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप अच्छी तरह से इसको यूज़ कर पाएंगे. नेक्स्ट टाइम इसको कन्वर्ट कर पाएंगे एक्टिव से पैसिव में. अब आपने क्या करना है व्यूअर्स, अपनी अच्छी प्रैक्टिस के लिए आपने इन 8 सेंटेंसेस को अटेम्प्ट करना है. ये सब एक्टिव सेंटेंसेस हैं. आपने इन सब की वॉइस चेंज करके इसको पैसिव में लिखना है और मुझसे रिजल्ट शेयर करना है. Before leaving, let me remind you one thing, that there are some intransitive verbs as well, right? Intransitive verbs का lesson already englishbuffet.5 के channel पे आपको मिल जाएगा, right? So intransitive verbs क्या होते हैं? ये ऐसे verbs होते हैं जो अपने बाद कभी भी object नहीं मांगते, because intransitive verbs सेल्फ सफिशेंट होते हैं. इनको अपना एक्शन पास ओवर करने के लिए मज़ीद डिटेल की ज़रूरत नहीं होती. ये सेल्फ सफिशेंट होते हैं. राइट. जैसे कि द बेबी क्राइज बिटरली, वी डोंट नीड एनी ऑब्जेक्ट आफ्टर द वर्ब क्राइंग. ओके. क्राइंग, द एक्शन ऑफ क्राइंग इट सेल्फ इज़ सेल्फ सफिशेंट. राइट. सो इस वजह से ये पैसिव में चेंज नहीं हो सकता. द मेड स्वीप्स नीटली, there isn't any object in the sentence because the verb sweeps is used here as an intransitive verb. I belong to a noble family, ये sentence भी जो है इसको हम नहीं चेंज कर सकते पैसिव में. सो रिमेंबर व्यूअर्स के तमाम verbs transitive नहीं होते, कुछ intransitive भी होते हैं. So while changing the voice of the sentences, you need to keep in mind if your verbs will be having any object after them, only then you will be able to change their voice. अभी पीछे slides में हमने जितने verbs को passive में use किया, convert किया, वो तमाम क्या थे? Transitive verbs थे. Okay. So by doing the concept of changing the voice, we also need to revisit the concept of transitive and intransitive verbs as well. I hope you got the idea. Thanks for watching. Keep on learning, enjoying and practicing. If you find anything helpful in these lessons, do subscribe the channel for getting more and more video lessons for you. Keep sharing with others. Take care of yourself. Allah Hafiz.